آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ مسلمان کی جو سب سے جامع تعریف اگر کوئی کی جائے تو وہ ہے کہ لا الہ الا، جو شخص یہ مانتا ہو کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب اگر ہم دیکھیں تو اس کلمے میں کہیں مسیح موعود یا امام مہدی پر ایمان لانے کی ضرورت کا ذکر نہیں ملتا، تو پھر اب ایک مسلمان ہونے کے لیے مسیح موعود اور امام مہدی پر ایمان لانا کیوں ضروری ہے؟ علی جناب، اس سوال کے جواب میں عرض یہ ہے کہ یہ کلمہ طیبہ جو ابھی جس کے اوپر بات ہو رہی ہے اور امام صاحب نے ابھی ذکر فرمایا کہ اس کا قرآن مجید میں دو مختلف مقامات پر ذکر آتا ہے، اصل میں یہ ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، یہ اقرار کرنا نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے محمد الرسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھجوایا ہے، یہ ہے رسول کی تعریف۔ اب جو رسول جس کا ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ نے آیت سماعت فرمائی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ آمن الرسول کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان لائے، بما انزل الیہ جو ان کی طرف اتارا گیا ان کے رب کی طرف سے، اور مومن بھی اس کے اوپر ایمان لائے۔ اسی طرح سب ایمان لائے اللہ پر، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، اور اس میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے رسولوں میں سے کسی میں۔ اب یہاں پر آمن الرسول بما انزل الیہ کہ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ایمان لائے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر اتارا گیا۔ اب جو اتارا گیا وہ سب سے پہلے تو قرآن مجید ہے، شریعت کے احکام ہیں، وہ سارے کے سارے بیان ہوئے ہیں۔ اب جو قرآن مجید اتارا گیا ہے اس میں اگر ہم غور سے پڑھیں، اور جس کا اسی پروگرام میں کئی دفعہ ذکر ہو چکا ہے، یہ ایک سورہ جمعہ ہے۔ سورہ جمعہ میں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بعثتوں کا ذکر ہے۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا، یہی رسول ہے جس کی بعثت امیین میں ہوئی، بعثت اولا امیین میں ہوئی، اس کا ایک ذکر ہے۔ اور دوسری بعثت وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، کہ یہی بعثت ثانیہ وہ آخرین میں ہونے والی ہے، لیکن وہ اس طرح نہیں ہوگی کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائیں، بلکہ آپ نے واضح طور پر بخاری میں اور ساری جو احادیث کی کتابیں ہیں ان میں ذکر آتا ہے کہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف اور آپ کے کاندھے پر اشارہ ہاتھ رکھ کے فرمایا، رجال اور رجل من ہؤلاء، بعثت ثانیہ کا مظہر عتم اور بروز وہ اہل فارس میں سے ہوگا، فارسی الاصل ہوگا، جیسا کہ جماعت احمدیہ کے عقیدے کے مطابق وہ سیدنا حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام ہیں۔ اب اگر یہ کہا جائے کہ ہم بعثت اولا پر تو ایمان لاتے ہیں، رسول اللہ پر تو ایمان لاتے ہیں، لیکن ان کی بعثت ثانیہ پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ ایک عجیب سی بات ہوگی۔ اور اسی بات کو قرآن مجید میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کی امت کا حوالہ دیتے ہوئے سمجھایا، آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کتاب کے ایک حصے پر تو تم ایمان لاتے ہو اور دوسرے کا انکار کرتے ہو، یہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو یہ مثال دے کے سمجھایا تھا۔ پھر اگر ہم اور آگے چلتے ہیں تو اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران آیت نمبر 82 اور سورہ احزاب آیت نمبر 8 میں نبیوں اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ آپ کے واسطے سے ان کے متبعین سے ایک عہد لیا تھا، ایک میثاق دیا تھا کہ اگر اس کے بعد کوئی نبی آتا ہے، تبھی بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد
नबी आने की शक्ल बदल गई और उसके ऊपर वमन युतिल्लाह वर्रसूल की मोहर जब तक नहीं होगी वो नबी नहीं होगा। तो अब जब इस किस्म का नबी आए तो कुरान मजीद में ये जिक्र आता है कि मीसाके अंबिया में लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्नहु, कि तुम उसके ऊपर जरूर ईमान लाओगे और उसकी मदद करोगे। अब ये कहा जाए कि सिर्फ कलिमा पढ़ लेना काफ़ी है और जो है हम ये इसको नहीं मानेंगे, तो ये उसके खिलाफ होगा जो पहले हम आयत पढ़ आए, आमन रसूल बिमा उन्जिला इलैहि, कि बिमा उन्जिला इलैहि पर हम ईमान लाएंगे तो रसूलुल्लाह कहने के हम मुस्ताक होंगे और तभी हम हक बजानिब होंगे जब हम बिमा उन्जिला इलैहि पे पूरी तरह से अमल करेंगे। अब अगर और आगे चलते हैं, सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस देखते हैं तो आप हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से फरमाते हैं, हर मुसलमान को आपने हुक्म दिया, फ़ाइज़ा रायतुमूहु फ़बाइऊहु वलौ हव्वन अला सल्जे फ़इन्नहु खलीफतुल्लाहिल महदी। हज़रत सौबान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम मेहदी अलैहिस्सलाम को पाओ तो उसकी बैत करो, हाँ तुम्हें बर्फ के तौदों में से घुटनों के बल क्यों ना जाना पड़े, क्योंकि वो अल्लाह के खलीफा खलीफतुल्लाह महदी हैं, उनके ऊपर ईमान लाना जरूरी है। फिर एक और रिवायत में है हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अदरका मिनकुम ईसा इब्न मरियमा फल युक़रिअहु मिन्नी अस्सलाम। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से जो कोई ऐसा खुशकिस्मत हो जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब अपनी बेसत सानिया में आए उनका ज़माना पाए तो उनका मेरा सलाम पहुंचाए और उन तक मेरा सलाम कहे, उनको अस्सलामु अलैकुम कहे। अब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये हुक्म है, एक तरफ हम ये कहें कि हम कलिमा पढ़ रहे हैं, रसूलुल्लाह का इकरार कर रहे हैं, और दूसरी तरफ बिमा उन्जिला इलैहि का इनकार कर रहे हैं, तो ये कैसे दो बातें इकट्ठी हो सकती हैं? रसूलुल्लाह का कलिमा पढ़ने का तकाजा ये है कि हम आपकी हर बात को माने और उसको तस्लीम करें, वरना ये आएगा लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून कबरा मक्तन इंदल्लाह अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून। अल्लाह ताला को ये सबसे ज्यादा ये बात बुरी लगती है और ये गुनाह वाली बात है कि वो बात इंसान करे जो वो खुद करता नहीं। अभी इज़ाला वहाम की बात हुई तो मुझे एक बात याद आई, चंद दिन पहले हम लुधियाना गए हुए थे तो वहाँ एक महल्ला है इकबालगंज, जहाँ पर हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम आज से 119 साल पहले क़याम पजीर थे और वहाँ ही आपने वो किताब तस्लीम फरमाई जिसका भी मुबश्शरात साहब तारुफ करवा रहे थे, इज़ाला वहाम, उसका एक हिस्सा हुजूर ने वहाँ तस्लीम फरमाया है। वहाँ ही उस महल्ले में मैं खड़ा था इकबालगंज में, तो मुझे एक वाक़या याद आया, वो मैं यहाँ अपने नाज़रीन और सामीन को बताना चाहता हूँ। जब हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने ये ऐलान किया कि मैं ही वो मसीह मऊद हूँ जिसके आने की सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशगोई की थी और पहले मसीह जो हैं वो आम अंबिया की तरह फौत हो चुके हैं, वो अब दोबारा नहीं आएंगे। जब हज़रत मसीह सानी ने ऐलान फरमाया तो बाज़ उलमा उस ज़माना में भड़क उठे, हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की शदीद मुखालफत की। उनमें से एक मौलवी गुलाम नबी साहब थे जो खुशाब के रहने वाले थे, उनको बुलाया गया खुशाब से, बड़ा शोला बयान मुकर्रर थे ये। इन्होंने हयात मसीह पर उसी इकबालगंज में खड़े हुए ज़बरदस्त तकरीर की और हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम की मुखालफत में तकरीर की। लुधियाना के जितने उलमा थे वो इनके साथ थे और जब ये अपनी आखिरी हदूद तक अपनी तकरीर को पहुंचा चुके और वो जलसा ख़त्म हो चुका तो ये वहाँ से निकले। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि हज़रत मसीह सलाम जिस मकान में इकबालगंज में मुकीम थे उसके दो हिस्से थे, एक ज़नाना हिस्सा और एक मर्दाना हिस्सा। अब वहाँ से वो हाथ में मसवदा लिए हुए ज़नाना मकान की तरफ जा रहे थे तो ये मौलवी गुलाम नबी साहब उधर से तशरीफ़ ला रहे थे। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया, उन्होंने भी मुसाफा किया।
हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उनको अपने साथ लेकर जो मर्दाना मकान था वहाँ आप तशरीफ़ ले गए। वहाँ जाकर वो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के सामने बैठ गए मौलवी गुलाम नबी साहब, और उन्होंने ये पूछा कि आप ये वफ़ात मसीह का अकीदा कहाँ से लाए? तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि कुरान मजीद से। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, और दूसरी जगह आपने कागज़ रख के कुरान मजीद में उनको निशान रख के बताया, और दूसरी जगह अल्लाह ताला फरमाता है फलम्मा तवफ़ैतनी। तो इसके जवाब में उन्होंने फरमाया फ़युवफ़्फ़ीहिम उजूरहुम भी तो आता है। तो हज़रत मसीह साहब ने फरमाया ये और बाब से है, यानी ये बाब तफ़ील से है, और ये बाब तफ़ाउल की बात हो रही है। वो कहते मैं गलती पर था। 2-3 मिनट खामोश रहे होंगे और देखें ये हदीस जो अभी मैंने आपके सामने हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की पढ़ के सुनाई, जी। मन अदरका मिनकुम ईसा इब्न मरियम फलयुक़रिहु मिन्नी अस्सलाम, जो ईसा अलैहिस्सलाम को उसकी बेअत सानिया के ज़माने में पाले तो उसका मेरा सलाम पहुँचाए। मौलवी साहब को उस वक्त यही ख्याल आया। आपने ये हदीस हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के सामने पढ़ी और कहा कि हुजूर मैं आपको सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम पहुंचाता हूं इस हदीस के मुताबिक। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बड़े जलाल से, रावी बयान करता है, एक अजीब रूप और अजीब शान आपके चेहरा मुबारक पे थी। आपने फरमाया वालेकुम अस्सलाम, और इस तरह आपने जवाब दिया। और उसके बाद मौलवी साहब इतने गर्विदा हो गए, रिवायत लंबी है मैं उसको छोड़ता हूँ, लेकिन ये आलिम जो उस वक्त मारूफ आलिम हिंदुस्तान में माने जाते थे मौलवी गुलाम नबी साहब, उनके जहन में जो पहली बात आई वो ये कि मैं इमाम महदी और मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने में हूँ, और आज इकबालगंज का ये महल्ला मेरी खुशकिस्मती है कि मैं यहाँ हूँ और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम हैं। आपने सबसे पहले अपने आका और हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सलाम हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को पहुँचाया। और सच्ची बात यह है जो हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम ने फरमाई, साफ दिल को कसरत एजाज की हाजत नहीं, एक निशान काफ़ी है, अगर दिल में है खौफ किरदगार, अगर अल्लाह का खौफ है तो एक निशान काफ़ी है। रसूलुल्लाह का तकाजा है कि हम हज़रत इमाम महदी और मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाएं, तभी हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद और रसूलुल्लाह पढ़ने में सादिक होंगे, हक बजाने होंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना मोहम्मद हमीद कौसर साहब, जज़ाकुमुल्लाह।